Hello students, a very good day to all of you. Today we will be just having small introduction about Marshal Arjun Singh, the chapter 1.3 on Wings of Courage, which is based on him. So we'll just have a small introduction about him, we'll just have a synopsis and then we will go back to our chapter. So this is like summary wise. He was born in 1919 and this is the whole summary. You can see the most important ones are that he was just selected at the year at the age of 19. So he was just 19 when he was selected in RAF. RAF is Royal Air Force, which belongs to UK. Remember that. And these all are the awards and you can say recognitions which has been given to him. This plus sign is Distinguished Flying Cross, which was given in 1944 by Lord Mountbatten, and these all we will be studying about this, so don't worry. Marshal Arjun Singh is only Indian Air Force officer who has achieved the 5-star rank. This is why we have been given this chapter and we will study and we will enjoy it. See, this is DFC and this is fly past, the first ever fly past, which was performed in 1947, 15th August 1947, when we were uh, given freedom from Britishers. This is Marshal Arjun Singh during 1965 और we will be studying a lot about मतलब 1938 से लेकर 1966 तक उन्होंने कितना कुछ किया. Then in finally 1969 he was retired, so we will be studying a lot about him. This is one of the rare pictures of Marshal Arjun Singh. I think around 1962 India-China war. This is very important. You should know. See, this is Marshal of IAF. You can see the stars. Okay, this is 5-star position. Then Air Chief Marshal, this is 4-star. Then Air Marshal, this is 3-star. Okay, then Air Vice Marshal, which is 2-star, and then finally Air Commodore, which is 1-star. उसके बाद ये सेम आपको मार्शल अर्जन सिंह का भी मिलेगा. पहले वो फ्लाइंग ऑफिसर बने, फिर उसके बाद स्क्वाड्रन लीडर बने, फिर उसके बाद ग्रुप कैप्टन बने. तो ये सब जो है, जो 5-स्टार है वो सबसे हाईएस्ट है और जो फ्लाइंग ऑफिसर है वो सबसे लोवेस्ट है. ओके, नॉट लोवेस्ट मतलब इनिशियल. जब कोई इंडियन एयरफोर्स में नया नया भर्ती होता है तो वो एज अ फ्लाइंग ऑफिसर भर्ती होता है. ठीक है, अभी रिसेंट न्यूज़ आई थी, सम very middle class girl who is like daughter of a tea sailor. I can't remember her name. I'm so sorry about it. She had been selected as a flying officer. बहुत ही recent news है. Okay, तो फ्लाइंग ऑफिसर इनिशियल स्टेज होता है. इनिशियल जब आप एयरफोर्स में भर्ती होते हो इंडिया में तो पहले फ्लाइंग ऑफिसर बनते हो, फिर प्रमोशन होते होते फाइनली यू बिकम टिल एयर मार्शल इज ओके. लेकिन एयर चीफ मार्शल और मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स, मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स तो आज तक एक ही बने हैं, दैट इज मार्शल अर्जन सिंह. ठीक है, दिस इज मार्शल अर्जन सिंह. ही वॉज पास्ड अवे इन 2017 एट द एज ऑफ 98 आई गेस. Okay, from 1919 to 2017, a very big coverage was done because he was such a great Indian Air Force officer. This is Marshal Arjun Singh. This is his happy picture. I just got it, so I thought you should have his introduction properly before we study about him. So this is why I had put it. This is Marshal Arjun Singh meeting Barack Obama. A very historical picture. At this time, he was 96 years old. This is APJ Kalam. He met APJ Kalam also. He was very great personality. And yes, this is in your chapter very important thing. This is Westland Wapiti. Wapiti were the planes, fighter aircrafts. तो हम इस चैप्टर में बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स के बारे में पढ़ने वाले, बहुत सारी अलग अलग एयरक्राफ्ट जो मार्शल अर्जन सिंह ने उड़ाई थी. दिस इज इंडियन दिस बाईप्लेन है, आपके चैप्टर में है, आपको काम आएगा इसलिए मैंने बता दिया. This chapter is really important from exam perspective. In board examination, this chapter is usually given in scene passages because it is considered to be one of the toughest chapters in your book. It is not tough at all, it is kind of a documentation, but the thing is you have dates and all to remember. Actually, you don't need to remember, but you just need to understand a chronology. It is not given in chronological order. क्रोनोलॉजिकल समझते हो ना, डेट वाइज नहीं दिया हुआ है. अब समझिए कि 1919 टू 2017 आपको सब कुछ इनका नहीं मिलने वाला है. ओके, सो कम बैक टू आवर चैप्टर. दिस इज
written for Marshal Arjun Singh. First of all, understand why this chapter is given to you. The thing is, Marshal Arjun Singh is the only Indian Air Force officer who has achieved the 5-star position till date. 5-star rank is the highest rank in Indian Air Force and even in Royal Air Force or any other Air Force of any country. Royal Air Force belongs to UK, as we have done introduction video. ठीक है, तो Air Force Marshal Arjun Singh, an icon of India's military history, will always be remembered as a war hero who had successfully led a young Indian Air Force during the 1965 India-Pakistan War. See, icon का मतलब होता है symbol, okay? तो मार्शल अर्जुन सिंह इज कंसिडर्ड टू बी द सिंबल ऑफ इंडियाज मिलिट्री हिस्ट्री, की इतना ग्रेट इंडिया का मिलिट्री हिस्ट्री है. इन्होंने एक यंग इंडियन एयरफोर्स उस टाइम पे लीड की थी, कब? 1965 में, जब हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था. द ओनली ऑफिसर टू अटेन द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ मार्शल. मैंने बताया आपको कि इनको 5-स्टार रैंक मिला हुआ था. तो ये इकलौते आज तक इंडिया के पहले और अब तक के आखिरी ऑफिसर हैं जिनको 5-स्टार रैंक मिला हुआ है. अच्छा, तुम लोग को ये भी क्वेश्चन आएगा कि सिर्फ उनको ही 5-स्टार रैंक क्यों मिला है? ऐसा क्या हुआ कि 1966 के बाद या 65 के वॉर के बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं कि किसी को 5-स्टार रैंक ही नहीं मिला? सीधे थिंग इज, जो 5-स्टार रैंक होता है ना, जो दिया जाता है इंडियन एयरफोर्स को, वो यूजुअली वॉर टाइम पे एज ए सेरेमनी या ऑनर दिया जाता है. अगर आपने वॉर में अच्छा परफॉर्म किया होता है या कुछ ऐसे एक्सेप्शनल इवेंट्स में, ठीक है. तो अब इंडिया का वॉर 65 के बाद तो हुआ नहीं था, 71 का वॉर डिफरेंट था, ठीक है. तो हमारी कितनी वॉर हुए थे? 47, अगर तुम लोग को याद है. 1962 का इंडो सीनो वॉर, ओके, दैट इज इंडिया चाइना, और 65 का इंडिया पाकिस्तान. तो ये 65 के वॉर में इनको 5-स्टार जो रैंक थी वो मिली हुई थी. चलो ठीक है. द एयरफोर्स इक्विवेलेंट द आर्मीज 5-स्टार फील्ड मार्शल Singh was a fearless and exceptional pilot who had flown more than 60 different types of aircraft. अब तुम लोग ये देखो, ये जो आपका 5-स्टार रैंक है ना, ये आर्मी के जो फील्ड मार्शल होते हैं 5-स्टार, उनके इक्वल होता है. सबका 5-स्टार रैंक हर एक फील्ड का इक्वल होता है. दैट इज नेवी, आर्मी एंड इंडिया एयरफोर्स. सिंह एक फियरलेस एंड एक्सेप्शनल. एक्सेप्शनल का मतलब मैंने इसके पहले भी वर्ड यूज़ किया, मतलब बताना भूल गई. एक्सेप्शनल का मतलब होता है कोई चीज़ जो अनयूजुअल हो. तो वो ऐसे पर्सन थे जो आपको उस तरीके के जो पर्सन होते हैं वो आपको मिलते नहीं है. इतने ज़्यादा ब्रेव और इतने ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन थे. ही हैड फ्लोन मोर देन 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट. इन्होंने अपनी लाइफ में 60 टाइप से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स उड़ाई हुई थी, ठीक है. He played a major role in transforming the Indian Air Force, IAF का abbreviation Indian Air Force, into one of the most potent air forces globally and the 4th biggest in the world. इनका बहुत ज़्यादा रोल माना जाता है इंडियन एयरफोर्स को ग्लोबली रैंक करवाने में. पोटेंट का मतलब क्या होता है? वेरी पावरफुल, वेरी पोटेंशियल, ठीक है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है. और जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है आज वर्ल्ड की 4th बिगेस्ट एयरफोर्स मानी जाती है. अब कपिल काक हैं जो वाइस चीफ हैं, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के. अभी नहीं है, उस समय थे जब आपका ये डॉक्यूमेंट किया गया था ये पर्टिकुलर लेसन. तो कपिल काक कह रहे हैं, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन एयरफोर्स इज मॉन्यूमेंटल टू द लीस्ट. द इंडियन एयरफोर्स ग्रेव विद हिम. ही वॉज एन एपिटम ऑफ मिलिट्री लीडरशिप इन क्लासिकल सेंस एंड इट इज therefore not surprising that he was honored with the rank of Air Force Marshal. See, कपिल का एक इंट्रोडक्शन है, सॉरी एक उनका स्टेटमेंट है उन्होंने दिया हुआ है. उसमें ये क्या बोल रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स में जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था वो बहुत ही मॉन्यूमेंटल था. मॉन्यूमेंटल का क्या मतलब होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसको आप ऐसे सेट कर दो कि इससे बेस्ट अब तक नहीं हुआ है. द इंडियन एयरफोर्स ग्रेव विथ हिम. He was the epitome. Epitome मतलब अगेन बेस्ट एग्जाम्पल, उनसे परफेक्ट एग्जाम्पल, उनसे परफेक्ट आपको कोई नहीं मिल सकता. Singh was honored with the rank of Marshal on Republic Day in 2002. Sam Harmuzji were the only 2 generals honored with the rank of Field Marshal. KM करियप्पा और मानेक शॉ के अलावा आज तक किसी को भी 5-स्टार रैंक नहीं मिला हुआ था.
और इंडियन एयरफोर्स में तो किसी को भी नहीं मिला हुआ था, ये उसके अकेले थे। Known as a man of few words, Singh was not only a fearless pilot but also had profound knowledge about air power and applied it in a wide spectrum of areas. Known as a man of few words, man of few words मतलब जो कम बोलते हैं, जो मार्शल अर्जुन सिंह थे वो बोलते बहुत कम थे। ये ना सिर्फ एक fearless पायलट थे बल्कि एक ही हैड प्रोफाउंड नॉलेज। प्रोफाउंड मतलब क्या होता है? डीप, ठीक है। उनके पास बहुत अच्छी एयर पावर की नॉलेज थी, एयरफोर्स की नॉलेज थी, और उसको उन्होंने बहुत अच्छे से अप्लाइड भी किया इन वाइड। वाइड मतलब बहुत ज़्यादा उसको उन्होंने अप्लाई भी किया। सिंह हैज़ assiduously led the Indian Air Force during the 1965 war and denied success to Pakistani Air Force, though it was better equipped with American support. His most outstanding contribution was during that war. देखो assiduously का क्या मतलब होता है? जब आप बहुत ज़्यादा डीपली किसी चीज़ में काम करते हो, बहुत केयरफुल, बहुत अटेंटिव होकर काम करते हो, तो इन्होंने बहुत अच्छे से उस समय पे इंडियन एयरफोर्स को लीड किया था। लीड क्या होता है? लीड का सेकेंड फॉर्म होता है 1965 वॉर के टाइम, और उन्हीं की वजह से जो पाकिस्तानी एयरफोर्स थी वो नहीं जीत पाई। अदरवाइज पाकिस्तानी एयरफोर्स हमसे बेटर कंडीशन में थी और हमसे बेटर इक्विप्ड थी। क्यों? क्योंकि उसके पास अमेरिकन सपोर्ट था। अगेन इट इज स्टेटमेंट बाय कपिल काक। ओके, कमेंडिंग हिज रोल इन द वॉर, वाई.बी. चौहान द देन डिफेंस मिनिस्टर हैड रिटन। वाई.बी. चौहान आपके उस टाइम के डिफेंस मिनिस्टर थे। उनका जो रोल था उसको कमेंड करते हुए, कमेंड का क्या मतलब होता है? तारीफ करना, प्रेज करना। ऑफिशियली जब कोई आपको तारीफ आती है, ऑफिशियली जब प्रेजिंग होती है, तो दैट इज नोन एज कमेंडिंग। उनका जो रोल था वो 1965 वॉर के टाइम, ठीक है, उसको कमेंड करते हुए उस समय के डिफेंस मिनिस्टर ने क्या लिखा है? एयर मार्शल अर्जन सिंह इज द ज्वेल ऑफ अ पर्सन, क्वाइट एफिशिएंट एंड फर्म, अनएक्सिटेबल बट अ वेरी एबल लीडर। तो उस समय के डिफेंस मिनिस्टर अपने मार्शल के लिए लिख रहे हैं कि ये एक बहुत ही ज्वेल ऑफ अ पर्सन। ज्वेल ऑफ अ पर्सन का मतलब क्या समझ सकते हो? बेस्ट ऑफ अ पर्सन, जिसको बोलते हैं ना हीरे सा आदमी है, ठीक है। तो उनकी उस तरीके से कंपेयर किया हुआ है उन्होंने। क्वाइट एफिशिएंट एंड फर्म, बहुत एफिशिएंट है। एफिशिएंट का मतलब अगेन समझ लो, एफिशिएंट मतलब होता है अपने काम में बहुत ही अच्छे, बहुत ही एफिशिएंटली किसी भी काम को करते हैं। फर्म एंड अनएक्साइटेबल बट वेरी एबल लीडर। फर्म, ओके, फर्म का मतलब होता है नॉर्मल, ऐसे ही समझ लो। फर्म मतलब जो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, नॉर्मल, बहुत ही हम्बल वे में रहते हैं। In 1944, the Marshal had led a squadron against the Japanese during the Arakan campaign, flying close air support missions during the crucial Imphal campaign, and later assigned the advance of Allied forces to Yangon, formerly Rangoon. 1944 में, अब ये बात क्या थी? पहले हमने 1965 की बात की, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? 1944 की। तो यही इस लेसन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि ये क्रॉनिकल नहीं जाता है, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल नहीं जाता है, सॉरी, क्रॉनिकल इज अ मैगजीन, ओके, ये क्रोनोलॉजी वाइज नहीं जाता है, तो इसलिए आपको थोड़ा याद करने में प्रॉब्लम होती है। 1944 में इन्होंने एक स्क्वाड्रन, स्क्वाड्रन मतलब एक टीम, एक्चुअली इंडियन एयरफोर्स में स्क्वाड्रन का मतलब होता है एक कोई भी मिशन जिसमें दो से ज़्यादा एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व होते हैं, तो उसे स्क्वाड्रन बोलते हैं। इन्होंने उस समय जापानीज़ के अगेंस्ट ये किया हुआ था। जापानीज़, तुम लोग को थोड़ा अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है तो तुम्हें याद आएगा कि जापान उस टाइम पे, ये कौन सा टाइम चल रहा है आपका? ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास का, राइट। तो वर्ल्ड वॉर 2 आपका क्या था? 1939 टू 1945, ये टाइम है कब का है? 1944 का। तो जो जापानीज थे उस टाइम पे वो दूसरे तरफ से थे और ब्रिटेन दूसरी तरफ से था, अगर तुम लोग को याद है, एक्सिस पावर्स, ठीक है। थोड़ा सा वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री 9th वाली, उसमें थोड़ा ध्यान रखो। तो उस टाइम जो जापानीज थे वो एशिया पर ऑलमोस्ट कब्जा करना चाहते थे, एशिया पे अपना जो एम्पायर है वो बढ़ाना चाहते थे। तो उस टाइम पे जो अराकन कैंपेन है, अराकन कैंपेन, ये बर्मा जो आपका अभी करंट म्यांमार है, उसको मैं मैप अगर हो सकेगा तो ऐड करके तुम लोग को एक्सप्लेन कर दूंगी, बट अदरवाइज यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि जापान की जो आर्मी है या जो जापानीज हैं
वो बर्मा पर अटैक कर रहे थे, ओके, बिकॉज दे वॉन्टेड टू एनेक्स और वॉट एवर, जो भी तुम लोग बोल लो उसको, मैं पॉलिटिकल टर्म्स में नहीं जाऊंगी. Flying close air support mission during the crucial Imphal campaign and later assisted the advance of the Allied forces to Yangon. इम्फाल तुम लोग को याद है, नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे इम्फाल आता है. हाँ, उसको अभी के अभी मैप में स्पॉट करना है और लिखना है, बिकॉज के ऊपर क्वेश्चन बनता है. तुम्हें तीनों जोग्राफिकल लोकेशंस पता होनी चाहिए, जापान की, ठीक है, अराकन की और इम्फाल की. क्वेश्चन ना बने तो भी तुम्हें पता होना चाहिए, एंड आई विल ट्राई टू एड अगर मेरे से हो पाता है तो. And later assisted the advance of the Allied forces to Yangon. Yangon रंगून में है, रंगून इसको पहले बोलते थे. तुम लोग की जो मूवी बनी थी शाहिद कपूर वगैरह की, देख लेना एक बार. वैसे ही तुम लोग यही तो करते रहते हो. ओके, जस्ट अ मिनट. इन रिकॉग्निशन ऑफ फ्लाइंग क्रॉस, डिस्टिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस जो होता है वो एक क्या बोलूँ, अवार्ड टाइप है. अवार्ड एक्चुअली इट इज़ लाइक दिस. आई एड अ फोटो इफ आई कुड, ठीक है. ऐसा रहता है, वो एक काइंड ऑफ अवार्ड होता है, आपको एज अ ट्रॉफी दिया जाता है, एज अ सिंबल दिया जाता है. ऑन द स्पॉट बाय द सुप्रीम अलाइड कमांडर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. हाँ, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये इंटरनेशनल लेवल पर जब आप करते हो ना कुछ, तब दिया जाता है. तो इनको साउथ ईस्ट एशिया के लिए दिया गया था, फॉर सुप्रीम अलाइड कमांडर, सॉरी, बाय द सुप्रीम अलाइड कमांडर. उन्होंने इनको दिया था साउथ ईस्ट एशिया में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए. साउथ ईस्ट एशिया, अगेन मैप देखो, म्यांमार देखो कहाँ है, जापान देखो कहाँ है, कहाँ आता है, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है. हम सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, चलो ठीक है. द फर्स्ट इंडियन पायलट टू हैव रिसीव्ड इट, वो पहले इंडियन पायलट थे जिनको इंटरनेशनल लेवल का DFC मतलब डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस मिला हुआ था. Singh was selected for the Empire Pilot Training course at Royal Air Force RAF Cranwell in 1938. When he was 19 years old, he retired from service in 1969. फिर से क्रोनोलॉजी ध्यान रखनी है, ठीक है. चैप्टर आपको कंफ्यूज कर रहा है, देखो सबसे पहले बात किसकी हुई, 65 की, राइट. उसके बाद बात किसकी हुई, चलो एक मिनट, पहले 65 की बात हुई, उसके बाद किसकी बात हुई, 44 की. हम सीधे वर्ल्ड वॉर 2 में पहुंच गए. उसके बाद अब किसकी बात हो रही है, 1938 की, ठीक है. 1938 में इनको रॉयल एयरफोर्स की ट्रेनिंग के लिए चूज़ किया गया था, सिलेक्ट किया गया था. देखो रॉयल एयरफोर्स क्या है, रॉयल एयरफोर्स जैसे अपना इंडियन एयरफोर्स है, वो किसका है, इंडिया का, ठीक है. उसी तरीके से जो रॉयल एयरफोर्स है वो किसका है, UK का, यूनाइटेड किंगडम, ओके. अब इसके बाद इन्होंने उनके रिटायरमेंट की भी बता दिया. रिटायरमेंट ईयर उनका क्या है, 1969. सिंह वॉज बोर्न ऑन अप्रैल 15, 1919 इन लियालपुर, नाउ फैसलाबाद, पाकिस्तान, and completed his education at Montgomery, now Sahiwal, Pakistan. His first at Montgomery and his first assignment on being commissioned was to fly Westland Wapiti biplanes in the northwestern frontier province as a member of number 1 रॉयल इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रन. ये याद रखना, RIAF, आर मतलब रॉयल, IAF मतलब इंडियन एयरफोर्स. तो अभी हमारे एयरफोर्स का क्या नाम है, इंडियन एयरफोर्स. UK के एयरफोर्स का क्या नाम है, रॉयल एयरफोर्स, ठीक है. तो ये RIAF क्या है, दोनों का मिक्सचर क्यों है, RAF, ठीक है, और IAF का मिक्सचर क्यों है, तब आपको देखना है ईयर, ठीक है. ये 1919 में बॉर्न होते हैं और ये 19 ईयर्स की एज में ही सिलेक्ट हो गए थे. तो इस टाइम पे किसका टाइम चल रहा था, 1999, 1938, सॉरी 1919, 1938. दीज आर द टाइम स्पैन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉलोनियल एरा, ठीक है. तो इसलिए ये जो इनका बॉर्न है वो लियालपुर अभी के करंट पाकिस्तान में आता है. पाकिस्तान 47 के बाद बना और इनका बर्थ हुआ था 1919 में. दिस इज वाई ही इज इनटू इंडियन एयरफोर्स, ओके. चलो ठीक है. नेक्स्ट, बाईप्लेन्स, वापिटी बाईप्लेन्स ये होती हैं. बाईप्लेन्स मतलब, बाई मतलब क्या होता है, टू. बाईप्लेन, बाई मतलब टू होता है. यूनी मतलब क्या होता है, वन. बाई मतलब क्या होता है, टू. चलो ठीक है. तो बाईप्लेन मतलब ये होता है जिसमें वो जो पेयर्स होते हैं विंग्स के, वो एक के ऊपर एक रहते हैं, दो रहते हैं और एक के ऊपर एक रहते हैं. आई एड अप इमेज इफ आई गेट इट. चलो ठीक है.
in the northwestern frontier province as a member of number 1 RIAF squadron. चलो ठीक है. आफ्टर ए ब्रीफ स्टिंट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा काम करने के बाद, ठीक है. आफ्टर ए शॉर्ट पीरियड, ब्रीफ मतलब शॉर्ट होता है, जो तुम लोग का आंसर इन ब्रीफ रहता है जिसमें तुम लोग एक पेज का लिख के आते हो वो रॉन्ग है. ब्रीफ मतलब होता है शॉर्ट. Stint with newly formed number 2 RIAF squadron where the marshal flew against the tribal forces. He later moved back to number 1 squadron as the flying officer to fly the Hawker Hurricane. He was promoted to the rank of squadron leader in 1944. अगेन देखो, थोड़ा सा काम करने के बाद न्यूली फॉर्म, पहले ये किस में थे, नंबर 1 में, ठीक है, नंबर 1 RIAF में थे. उसके बाद नई एक इन्होंने यूनिट बनाई जो थी नंबर 2, स्क्वाडन बनाई, यूनिट आर्मी में बोलते हैं. स्क्वाडन बनाई जो नंबर 2 थी, ठीक है. उसमें भी इनको भेजा गया, ठीक है, अगेंस्ट ट्राइबल फोर्सेस. और उसके बाद फिर से इनको नंबर 1 में मूव किया गया एज अ फ्लाइंग ऑफिसर टू फ्लाई अ हॉकर हरिकेन. हॉकर हरिकेन अगेन एक अलग टाइप का एयरक्राफ्ट है. ही वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ स्क्वाडन लीडर इन 1944. इनको स्क्वाडन लीडर की जो रैंक थी वो 1944 में मिली. For his role in successfully leading the squadron in combat, he was awarded the Distinguished Flying Cross in 1944. ये अगेन रिपीटेशन है, अगर तुम लोग को ध्यान है, साउथ ईस्ट एशिया का, ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस. ये तुम लोग का एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन के जो चैप्टर्स होते हैं ना वो रिव्यू नहीं किए जाते हैं, प्रिंट कर लिए जाते हैं, तो इसको प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं रखा गया है और ना ही बच्चों के कंफर्ट के हिसाब से बनाया गया है, और जो ठीक भी है. यू ऑल आर इन 10th स्टैंडर्ड, यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो DFC तुम लोग को याद है, जापानीज वॉर के टाइम पे उन्होंने, जापानीज के अगेंस्ट वॉर के टाइम पे जब उनको साउथ ईस्ट एशिया के लिए DFC मिला हुआ था. फॉर हिज रोल इन सक्सेसफुली लीडिंग द स्क्वाड्रन इन कॉम्बैट, ठीक है. On 15th August 1947, he achieved the unique honor of leading a flypast of over 100 Indian Air Force aircraft over the Red Fort in Delhi. चलो, द ग्रेट डे ऑफ फ्रीडम, ठीक है, जब हमें फ्रीडम मिला तो उस दिन जो ऑनर होता है फ्लाई पास्ट, अगर तुम लोग को वो इमेजेस याद हैं जब प्लेन्स एक साथ जाती हैं, इंडिया के फ्लैग का कलर बनता है, ठीक है, दैट इज़ फ्लाई पास्ट. और उसमें 100 इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से जो रेड फोर्ट से फ्लाई पास्ट किया जाता है दिल्ली में, ठीक है, तो उसको उन्होंने उस समय लीड किया था. अगेन ये लोग कहाँ जा रहे हैं, 47 में जा रहे हैं. चलो ठीक है. आफ्टर हिज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ विंग कमांडर ही अटेंडेड द रॉयल स्टाफ कॉलेज एट UK इमीडिएटली आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस. इंडियन इंडिपेंडेंस कब हुआ था, 1947 में. तो 1947 के बाद जब इनको विंग कमांडर बना दिया गया था, उसके बाद ये रॉयल स्टाफ कॉलेज गए जो अगेन UK में है. और उसके बाद उन्हें दिया गया था अम्बाला, ठीक है. अम्बाला इज अ प्लेस इन पंजाब, ओके, इन दैट रीजन. ही कमांडेड अम्बाला इन द रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन. इनको ग्रुप कैप्टन का रैंक दिया गया था. इन 1949 ही वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ एयर कॉमोडोर एंड टुक ओवर एज एयर ऑफिसर कमांडिंग. AOC एक रैंक होता है, मैं इसकी भी तुम लोगों को सारे रैंक की वो बता देती हूँ ताकि तुम लोग सब इन चीज़ों में क्लियर हो जाओ कि ये 5 स्टार रैंक क्या है, 4 स्टार रैंक क्या है, AOC क्या है, ओके. ऑफ एन ऑपरेशनल कमांड विच लेटर केम टू बी नोन एज वेस्टर्न एयर कमांड. इनको 1949 में एयर कॉमोडोर कमांडिंग of an operational command which later came to be known as Western Air Command. ये just documented static जानकारियां हैं, बस आप उसको रख लो. Singh had distinction of having the longest tenure as AOC of an operational base, initially from 1949 to 52 and then again from 57 to 61. After his promotion to the rank of Air Vice Marshal, he was appointed as AOC in C of an operational command. Okay. इनका जो डिस्टिंक्शन मतलब समझते हैं ना, अचीवमेंट, ठीक है. लॉन्गेस्ट टेन्योर मतलब क्या था, सबसे ज़्यादा टाइम तक इन्होंने AOC की पोस्ट पर काम किया है, AOC की पोस्ट पर रहे हुए हैं. Towards the end of 1962 war, he was appointed as Deputy Chief of the Air Staff and he became the Vice Chief of the Air Staff in 1963.
62 वॉर फिर से याद करो, 62 वॉर कहाँ था आपका, इंडिया चाइना वॉर था, ठीक है। 1962 इंडिया चाइना वॉर और 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर, इनके दोनों वॉर में कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। जो 1962 का वॉर था उसके ख़त्म होने के बाद इनको एज अ डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ अपॉइंट किया गया था, ठीक है। और उसके बाद वो वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने 1963 में। ही वॉज द ओवरऑल कमांडर ऑफ द जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज शिक्षा held between Indian Air Force, Royal Indian Force and Royal Australian Air Force। ये जो इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ऐसा कि बहुत सारी जो फ्रेंड कंट्रीज़ होती हैं ना, जिनका आपस में कुछ रिलेशन होता है या स्ट्रेटेजिक हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, ट्रेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपकी एयरफोर्स एक साथ आकर कोई भी प्रैक्टिस करती है, ठीक है, तो उसे बोला जाता है जॉइंट एयर ट्रेनिंग। तो इसी तरीके से आर्मी भी आती है, इसी तरीके से नेवी भी आती है। ये इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो ऑब्वियसली आपको एक दूसरे की टेक्निक पता चलती है, एक दूसरे से सीखने मिलता है, और दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि पूरे वर्ल्ड को आपकी फ्रेंडशिप का, आपके अलायंस का मैसेज जाता है। ओके, on on August 1, 1964, the rank of Air Marshal, the Marshal of the Air Force Arjun Singh took over reins of Indian Air Force, ठीक है। अगस्त 1964 में जो रैंक ऑफ एयर मार्शल था, ठीक है, द मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह टूक ओवर रेंज ऑफ आईएफ। टूक ओवर रेंज का मतलब क्या होता है, टूक ओवर द कंट्रोल, जो पूरा इंडियन एयरफोर्स है वो उनके कंट्रोल में आ गया। कंट्रोल में आने का मतलब क्या है कि वो चीफ बन गया। आज तक के जो चीफ होते हैं ना, वो आपके नॉर्मल एयर मार्शल होते थे। एट अ टाइम व्हेन इट वाज स्टिल रिबिल्डिंग इटसेल्फ एंड वाज गियरिंग टू मीट अप न्यू चैलेंजेस। किसकी बात हो रही है, इंडियन एयरफोर्स की। इंडियन एयरफोर्स जब खुद को फिर से बना रहा था, अभी भी उसको बना रहा था, और नए नए जो चैलेंजेस थे उनको करने की, उनको कम्पीट करने की कोशिश कर रहा था। उस टाइम पर जो हेड बने इंडियन एयरफोर्स के, वो कौन बने, मार्शल अर्जन सिंह। सिंह वॉज द फर्स्ट एयर चीफ टू कीप हिज फ्लाइंग currency till his CAS rank, that is having flown over 60 different types of aircraft from pre-World War II era biplanes to the more contemporary Nats and Vampires. He has also flown in transport aircraft like the Super Constellation, ठीक है। जो मार्शल अर्जन सिंह थे वो ऐसे पहले चीफ थे जो अपनी फ्लाइंग करेंसी थी, दैट इज जो उनको फ्लाइंग आती थी, ठीक है, वो उसको एंड तक उन्होंने कंटिन्यू रखा। अदरवाइज क्या करते हैं, जब चीफ बन जाते हैं तो यूजुअली फ्लाइंग नहीं करते हैं, ठीक है। यूजुअली दे डोंट फ्लाई एयरक्राफ्ट्स एंड ऑल, दे जस्ट लुक आफ्टर द, obviously air chief marshal is very very big post, they don't get time to fly aircrafts and all, but Marshal Arjun Singh was the only one who kept that thing till his the best rank, till his CS rank। इन्होंने 60 से भी ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के एयरक्राफ्ट उड़ाए थे फ्रॉम प्री वर्ल्ड वॉर टू। प्री वर्ल्ड वॉर टू मतलब 1930s के टाइम से, ठीक है, 1930s के टाइम से टू दी मोर कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी मतलब क्या होता है, मॉडर्न, जो बहुत ही आपकी मॉडर्न न्यू टेक्निक है उसको भी उन्होंने फ्लाई किया। मतलब यू अंडरस्टैंड, इन्होंने इतने सारे नए नए एयरक्राफ्ट्स को फ्लाई किया है और उसके बारे में उनको सबके बारे में नॉलेज भी थी। In 1965, when Pakistan launched its Operation Grand Slam with an armored thrust targeted at the vital town of Akhnur। अखनूर कहाँ है, अगेन अखनूर इज इन कश्मीर। अखनूर ब्रिज जो था उसको गिराने का इन लोगों का प्लान था, बिकॉज उससे वो मेन कनेक्टिंग था, ठीक है। सिंह लेड इंडियन एयरफोर्स थ्रू द वॉर विथ करेज, डिटर्मिनेशन एंड प्रोफेशनल स्किल। He inspired Indian Air Force to victory despite the constraints imposed on the full-scale use of Air Force combat power। 65 में पाकिस्तान ने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ग्रैंड स्लैम। उसमें आर्मर्ड थ्रस्ट, आर्मर्ड मतलब हथियारों के साथ, जिसको हिंदी में बोलते हैं हथियारों का जखीरा लेकर किसी कंट्री की तरफ आप अटैक कर रहे हैं, तो उसमें मेन इनका टारगेट था अखनूर, कश्मीर। उस समय भी जो मार्शल अर्जन सिंह थे उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को बहुत ही अच्छे से करेज के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ उसको लीड किया। डिटर्मिनेशन का क्या मतलब होता है, पूरी डेडिकेशन, ध्यान से उन्होंने किया, ठीक है।
डिस्पाइट, डिस्पाइट मतलब बावजूद, कभी भी अगर आपको डिस्पाइट इंस्पाइट दिखे उसके बावजूद उसका मतलब होता है। सो डिस्पाइट द कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शंस। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी वहाँ पर कि आप इंडियन एयरफोर्स का पूरा मतलब कि एयरफोर्स को पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, उसके अलग अलग रीज़न थे। पॉलिटिकल तो जो थे वो थे, मेन जो प्रैक्टिकल रीज़न था वो ये था कि वहाँ के जो लोग थे, वहाँ की मतलब पॉपुलेशन थोड़ी डेंस थी, तो अगर आप एयरफोर्स का फुल फ्लेज्ड यूज़ करोगे तो क्या होगा, वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। और उस वॉर में मतलब उस टाइम पे भी इंडियन एयरफोर्स जीता और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स थी उसको भगा दिया। सिंह वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण, पद्म विभूषण अगेन थर्ड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड for his astute leadership of the Air Force during the war. Subsequently, in recognition of Air Force contribution during the war, the rank of CAS was upgraded and Arjun Singh became the first Air Chief Marshal of the Indian Air Force. Okay. इनको पद्म विभूषण मिला था फॉर हिज एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है, very smart, very intelligent, someone who has an exceptional mind, someone who is very intelligent. Okay, तो इनकी जो लीडरशिप थी वो बहुत ही एस्ट्यूट थी फॉर एयरफोर्स ड्यूरिंग द वॉर। सब्सिक्वेंटली इन रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंटली मतलब उसके बाद, ठीक है, इसी रिकॉग्निशन में एयरफोर्स के कंट्रीब्यूशन के लिए उनको CAS मतलब चीफ ऑफ एयर स्टाफ दिया गया था अर्जन सिंह को, और उसके बाद वो इंडिया के फर्स्ट एयर चीफ मार्शल बन गया। ठीक है, फर्स्ट एयर चीफ मार्शल। एयर चीफ मार्शल 5 स्टार रैंक होता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की। ही रिमेन्ड अ फ्लायर टू द एंड ऑफ हिज टेन्योर इन IAF। अगेन देख लो, रिपीटेशन है, पहले भी बोल दिया है कि उन्होंने अपनी जो फ्लाइंग करेंसी थी उसको यूज़ किया था, और वापस से ही एक पैराग्राफ बाद वही बोल रहा है। ठीक है, तो समझने वाली बात है, सीधी बात है कि ये लास्ट तक जो थे अपने टेन्योर के लास्ट तक, टेन्योर मतलब जब तक उन्होंने काम किया तब तक वो इंडियन एयरफोर्स के एक फ्लायर रहे। ठीक, visiting forward bases and units, flying with the squadrons. He retired in August 1969. The European accepting ambassadorship to. Okay, there are some printing mistake as well. Wow. चलो ठीक है. Forward bases. He remained a flyer to the end of his tenure in Indian Air Force, visiting forward bases. फॉरवर्ड बेसिस का क्या मतलब होता है, जो बेसिस होते हैं जहाँ पे मिलिट्री पोजीशन होती है, सिक्योर्ड बेसिस। ठीक है, एंड यूनिट्स एंड फ्लाइंग विद द स्क्वाड्रंस, स्क्वाड्रंस अगेन टीम याद रखो। ही रिटायर्ड इन अगस्त 1969। उसके बाद इन्होंने एम्बेसडरशिप एक्सेप्ट की थी स्विट्जरलैंड की। एम्बेसडरशिप का क्या मतलब होता है, एम्बेसडर्स तुम लोगों ने सुना होगा कि इंडियन एम्बेसडर इन चाइना, इंडियन एम्बेसडर इन USA एंड एट द सेम टाइम USA इज एम्बेसडर इन इंडिया। तो एम्बेसडर जो है वो होते हैं कि कोई भी कंट्री का पर्सन, कोई भी कंट्री के ऑब्वियसली प्रोमिनेंट लोग होते हैं, वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरी कंट्री में जाते हैं। ठीक है, तो इनको स्विट्जरलैंड में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा गया। भारतीय राजदूत या इंडियन एम्बेसडर ये पोस्ट होती है, गूगल कर लो। ठीक है, ही वॉज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली फ्रॉम December 1989 टू December 1990। दोनों प्रोनाउंसिएशन है, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल एट, नो प्रॉब्लम। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो तुम लोग सुनते हो आजकल, LG, दिल्ली के LG अनिल बैजल, और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की नहीं जमती है, तो ये वो वाली पोस्ट थी। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट जो इन्होंने 1989 से 1990 तक अज्यूम की। ये गवर्नर क्यों बने, क्योंकि दिल्ली इज अ, यस, दिल्ली इज अ व्हाट, दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी। ठीक है, ऐसी यूनियन टेरिटरी जिसके चीफ मिनिस्टर होते हैं। चलो ठीक है। Having been a source of inspiration to all the personnel of armed forces, through the years, the government conferred the rank of Marshal of the Air Force upon Arjun Singh in January 2002. सोर्स ऑफ ये जो मार्शल अर्जन सिंह थे वो हमेशा से इंस्पिरेशन के सोर्स बने रहे फॉर पर्सनल ऑफ आर्म फोर्सेस। पर्सनल्स मतलब क्या होते हैं, आर्म फोर्सेस के लोग, आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स, आर्म फोर्सेस के सोल्जर्स। तो पर्सनल ध्यान रखना है, आर्म पर्सनल बोलते हैं इनको।
Through the years, the government conferred the rank of Marshal of the Air Force upon Arjun Singh in January 2002. इनको एयरफोर्स का जो मार्शल रैंक है, ठीक है, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स जनवरी 2002 में दिया गया, मेकिंग हिम द फर्स्ट एंड ओनली 5-स्टार रैंक ऑफिसर विथ इंडियन एयरफोर्स। जैसे मैंने पहले भी बोला था, ही वॉज द ओनली इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर हु हैज अचीव्ड द 5-स्टार रैंकिंग। अच्छा, चैप्टर के फ्लो में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। पहली बात तो देखो, इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है जो बेसिक है। बात हम शुरू कहाँ से करते हैं, इनका बर्थ होता है 1919, ओके, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। 19 ईयर्स की एज में इनका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, इन यूके। 19 ईयर्स की एज में इनका सिलेक्शन हो जाता है, मतलब अराउंड 1938 होगा, जोड़ लो। उसके बाद बात कहाँ की करते हैं हम, 1944 की बात करते हैं। 1944 की बात क्यों आती है, क्योंकि इन्होंने जापानीज के अगेंस्ट साउथ ईस्ट एशिया में बर्मा मतलब म्यांमार को बचाने के लिए ब्रिटिश की तरफ से लड़े थे, दैट इज इंडिया की तरफ से भी लड़े थे, क्योंकि उस टाइम इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी थी, ओके। उसके बाद इनका नाम कब आता है, सॉरी, आपके बुक में इनका जो डिस्क्रिप्शन है वॉर्स का, वो कब आता है, 62। सीधी सी बात है, हमारे इसके बाद आपका जो वॉर हुआ था इंडिपेंडेंस इंडिया का, ये फर्स्ट वॉर माना जाता है, अगर कश्मीर के थोड़े थोड़े इश्यूज को छोड़ दे तो 47 वाले। तो जो 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ, ठीक है, उसमें इन्होंने अपना एक्सेप्शनल डिटर्मिनेशन और ब्रेवरी दिखाई। उसके बाद मेन जो है आपका 1965 के बाद से पूरा इंडियन एयरफोर्स का हिस्ट्री बदलने वाला था, क्योंकि तब पहली बार मतलब 1966 से 5-स्टार रैंक का भी इनके पास क्या होने वाला था, ऑफिसर होने वाला था, ठीक है। तो मार्शल अर्जन सिंह इस तरीके से इंडिया के फर्स्ट 5-स्टार रैंकर इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर बने हैं, और अब तक उनके अलावा ये रैंक किसी को भी नहीं मिली है। वी ऑल आर ब्लेस्ड, वी ऑल आर वेरी लकी टू read about him, to know about him, okay, thank you.